नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात कर रहे हैं ठगी को लेकर। ठग जो है या गबन करने वाले हैं किस तरह से लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसी एक खबर आ रही है सिल्लीगुड़ी के शक्तिगढ़ से, जहां पर एक महिला पर लगभग 8 करोड़ रुपए के गबन का आरोप आ रहा है। मेरे पीछे जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये कुछ महिलाएं हैं। इसके अलावा और भी इनसे ज्यादा महिलाएं हैं जिनको किसी न किसी तरह से बोलकर, एक तरह से कह सकते हैं उल्लू बनाकर या झूठे झांसे देकर विभिन्न तरीकों से उनसे पैसे ऐंठे गए और ये रकम पहुंच गई लगभग 8 करोड़ की। और आज इस सिलसिले में यहाँ पर फिलहाल इनका कहना है कि जो आरोपी महिला है उसे यहाँ पर लाया गया है एनजेपी थाना। मैं बता दूं, ये जो सीधी तस्वीरें हैं आपको हम सिल्लीगुड़ी के एनजेपी थाना से आपको दिखा रहे हैं और वहीं पर इस महिला को आज गिरफ्तार करके लाया गया है। इससे पहले भी इनकी झड़प हो चुकी थी 2-3 महीना पहले भी, उसी केस को लेकर आज फिर। और किस तरह से इनके पैसे लिए गए, किस तरह से इनके साथ गबन किया गया, ये हमको दिखाते हैं। आप भी सावधान रहिएगा कि आपके साथ ऐसे रैकेट का पाला न पड़ जाए। तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं, इनसे ही हम बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें उल्लू बनाया गया। काकी बात से बात करते हैं। क्या नाम आपका? আমার নাম অর্চনা সরকার। কি করে আপনার থেকে টাকা নিয়ে? আমাকে বলছে যে দাও দিদি, টাকাটা তোমার ব্যাংকে থাকলে তো তোমার ফায়দা কম, আমার একটা বিজনেসে লাগাবো। ও মহিলাটার নামটা কি? ঐশ্বরিয়া রাজ মন্ডল, ওর ছদ্মবেশী নাম অম্বিকা মন্ডল, আশা রাজ মন্ডল ওর ছদ্মবেশী নাম। এক এক সময় হ্যাঁ 3টা নাম। আপনি সব জানেন? হ্যাঁ, তারপরে আপনি টাকা দিয়ে দিলেন? টাকাটা পরে জানতে পারি। প্রথমে তো মিঠা মিঠা ভাত করছে, সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, বুঝতেও পারি নাই। মানুষে আমরা রাজবংশী মানুষ, আমরা কুচবিহারি, আমরা ভাবি যে আমরা যেরকম সবাই বোধহয় এরকম। আপনার থেকে কত টাকা নিয়েছে? আমার কাছে 8,65,000 টাকা। 8,65,000 হ্যাঁ, আমার ডিট করা আছে। ডিট থেকে দিয়েছে? হ্যাঁ। এখন কি বলছে? না, কোনো টাকা দেয় নাই। কোনো টাকাই দেয় না? না। ছিল? হ্যাঁ, কবে নিয়েছিল? কতদিন হয়ে গেছে? এই চার জানুয়ারিতে। আপনার সঙ্গে তো আছে না? হ্যাঁ, এদিকে আসুন। নাম, আপনার নামটা কি? লক্ষ্মী সরকার। আপনার থেকে টাকা নিয়েছে? হ্যাঁ, আমার থেকেও নিয়েছে। আমাকে বলেছিল যে চাকরি দিবে আমাকে, বলে তুমি তো পড়াশোনা জানো, শিক্ষিত, তুমি আমাকে এতগুলো টাকা দাও, তোমাকে আমি চাকরি দেবো, সেন্ট্রালে চাকরি দিবে। কত টাকা নিয়েছে? আমি টোটাল ওকে লোন তুলে আমি ওকে দিয়েছি যে টোটাল 6,48,000 টাকা দিয়েছি লোন তুলে, যে ও আমাকে চাকরি দিবে। লোনে আপনার চাকরির নামে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে আপনার কি নামে নিয়েছে? আমাকে কিছু বিজনেস করবে দিদি, প্রফিট হলে হ্যাঁ আমাকে পার্সেন্টেজ দেবে। হ্যাঁ, কিছু দেয় আপনাকে? কিছু দেয় না? আপনাকে চাকরি হয়েছে? না, হয়নি, এখন টাকা পয়সাও দিচ্ছে না। কে ভদ্র মহিলার নামটা কি? ঐশ্বরিয়া রাজ মন্ডল। ওনার হাজবেন্ডও বলেছিল সুভাষিস চন্দ্র মন্ডল। আপনার হাজবেন্ডও আছে কি? হ্যাঁ, ওনার হাজবেন্ড। ওনার নাম কি? ওনার নাম সুভাষিস চন্দ্র মন্ডল। উনি এসএসবি বলছে আমি এসএসবি ভালো। হাজবেন্ডের আমার নাম মায়া সাহা। হ্যাঁ, ঐশ্বরিয়া রাজ মন্ডলের হাজবেন্ডের নাম হলো সুভাষিস চন্দ্র মন্ডল। ওনার ভাই হলো অরুণ মন্ডল, যে বিহারে থাকে। আর ওর সঙ্গে যে থাকে, বয়ফ্রেন্ড না পার্টনার না ভাই জানি না, অঙ্কিত আনন্দ। ঠিক আছে, এরা হলো ফ্রড। এক একজনের কাছে এক এক রকম কথা বলে টাকার পয়সা নেয়। সে 9ই আগস্ট ওর সঙ্গে একটা হামলা হয়, হ্যাঁ একটা ঝামেলা হয়, তারপরে ওকে পুলিশ নিয়ে আসে। আর আজকে 3 মাস পরে আবার ও অ্যারেস্ট হয়েছে আমাদের এই অভিযোগের জন্য। আপনার কত টাকা নিয়েছিল? আমার 8 লাখ টাকা নিয়েছিল, তার মধ্যে কিছুটা রিফান্ড হয়েছে, কিছুটা বলছে আর দিব না। কি বলেছিল? কি বলে? অনেক রকম প্রলোভন দিয়েছিল, লোভ দেখিয়েছিল। তারপরে হচ্ছে আমরা গরিব মানুষ, আমরা 2টা পয়সার জন্য অনেক কিছু করি, তো হচ্ছে হ্যাঁ এরকম বলছিল। হ্যাঁ, তারপরে বলছিল যে তোমরা তো এমনি পয়সা জমাতে পারবে না, আমার কাছে থাকুক, হ্যাঁ এখানে ফ্ল্যাট খালি আছে, যখন একভাবে হবে। তো আমরাও সরল মানুষ, অত ঘুরপ্যাচ নাই, ওর কথা বিশ্বাস করে আজকে আমাদের এই অবস্থা। तो देखिए किस तरह से विभिन्न मद में इनसे पैसा लिया गया। किसी को ज्यादा इंटरेस्ट देने की बात कही गई, किसी को नौकरी देने की बात कही गई। किसी से कहा गया कि हम कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं, जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे पाएंगे, बिजनेस में लगा रहे हैं, इसका फायदा हम आपको देंगे। उसे लेकर यहाँ पर देखिए ये काकी माँ और यहाँ पर काकी माँ दिखा इस महिला को देख लीजिए, बताया जा रहा है कि ये कैंसर पेशेंट है और इनसे इस बात से पैसा लिया गया कि इनकी जो बेटी है उसे नौकरी दिला देंगे। बेटा को नौकरी दिला देंगे। क्या नाम आपका? বনা দাস। আপনার কি নামে টাকা নিল? আমাকে
বলছে ওনার সংস্থার সব সংস্থার সাথে স্যারগুলাকে চিনে, সেই স্যারগুলাকে আমাদের বাড়িতে পাঠায় দেয়, দিয়ে বলে কি যে আমাকে লোন দাও, তুমি তো ভয়ে লোন উঠাইতে পারো না, আমাকে লোন দাও। আমি লোন আমি নিব না, আমি পারি না চালাইতে। বলে কি চিন্তা করো কেন, তুমি তো ক্যান্সার পেশেন্ট, তোমার একটা ছেলেকে আমি বলছি আমার ছেলেরা তো বেশি পড়াশোনা জানে না, মাধ্যমিক পাস। বলে কি মাধ্যমিক পাশের একটা ঝাড়ুওয়ালা, ঝাড়ু দেওয়ার চাকরি তো তোমার ছেলেকে যদি দেয় তুমি আর কয়দিন বাঁচবা, ক্যান্সার পেশেন্ট তো বেশি বাঁচে না, ছেলেগুলা তো বাঁচবে। এই করে তুমি ক্যাশ টাকা দিতে পারবে না, তাহলে আমাকে কিস্তি তুলে দাও, কিস্তি আমি চালাবো, তোমার টেনশন নাই কোনো। তারপরে কিস্তি নিয়ে সে কিস্তিও চালায় না, আর ওদের কোনো ডকুমেন্টস নাই এখানে কিছু না। আমার ছেলেকে ফোন করে নিয়ে বলে কি বাবু ডকুমেন্টস গুলো একটু নিয়ে আসো তো, আমার ছেলের থেকে আবার বাইকও নিয়ে নিছে, গাড়ি, আমার কাছ থেকে হ্যাঁ ম্যাকবুক নিছে। গাড়ি নিছে। কত টাকা নিয়েছে আপনার? আমার সব দিয়ে তাও 5 লাখ হবে। আরো লোকের থেকেও আইনে দিছি, বলে কি দাও না চাকরির জন্য তো লাগবে, লোকের থেকেও আইনে দিছি। আচ্ছা, মানে আপনি নিজে দিয়েছেন আর অন্য থেকে হ্যাঁ, দিয়েছেন? তারপরে একটা কিস্তি দেয় না, কিছু না, উল্টা ধমকি মারে, আমার ছেলেদেরকে মারবে, রাস্তায় পড়ে থাকবে, কেউ তাকায় দেখবে না, উল্টা ধমকি মারতেছে এখন। আপনি কি বলতে চাইছেন? আমার কাছ থেকে এর আগে একটা মোবাইল নিচ্ছে, ওটা শোধ করছে। তারপরে একটা ল্যাপটপ নিচ্ছে 53,000 টাকার, ওটাও শোধ করছে। তারপরে একটা ম্যাকবুক, আমি তো এটা ডিড কিসের? এটা টাকা দিয়েছেন আপনি? লাস্টে, হ্যাঁ, যখন ও মানে দুগ্গিবাজি করতেছে তখন আমার ছেলে বুদ্ধি করে করে ডিটটা করায় এনেছে। तो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन लोगों को ठगा गया। और ये कुछ लोग हैं, मैं आपसे बता दूं, ये कुछ लोग हैं, बहुत से लोग इस ठगी का शिकार हुए, बहुत से बाहर भी खड़े हुए, कितने लोग आए भी नहीं है यहाँ पर। एक ये भाई साहब भी है जो इस ठगी का शिकार हुए। इनका कहना है कि ठगी के तो शिकार हुए ही, और चोर बचाए शोर की तर्ज पर इन पे उल्टी डायरी हो गई और इन्हें 14 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। सर क्या नाम आपका? धीरज गोयला। धीरज गोयला गोयला, जी गोयला। जी जी। हाँ, तो आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इसने मुझे कुछ बोला कि आप मुझे कुछ पैसा दो, मैं बिजनेस पर्पस में लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ऐसा क्या बिजनेस है? तो उसने बोला कि मैं कुछ अपार्टमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन के, जो मैं उसमें पैसा लगाऊंगी, जैसे कि मान लो आज के रेट पे 3,000 चल रहा है, तो 5 महीना या 3 महीने के बाद 3500-3600 होगा, तो उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट दोगी। तो इसने मुझे कुछ थोड़ा पहले प्रॉफिट दिया भी था, मिनिमम मैं उसको तो नहीं, शुरू में आपको प्रॉफिट दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। फिर प्रॉफिट जैसे जैसे देती गई और मेरे से और भी पैसा लेती गई, तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया। तो मेरा लास्ट में पैसा मेरा इसके पास बच गया 45 लाख जैसा, यानी कि 44,50,000। मैं 44,50,000, 44,50,000 अभी मैं पा रहा हूँ। आपने पैसे दिए वो कच्चे में दिए ना, फिर आपने चेक से या वैसे पेमेंट किए हैं? कुछ तो मैंने कैश दिया है, कुछ तो मैंने अकाउंट में भी दिया है, और हाँ अकाउंट में भी दिया, उनके हस्बैंड के अकाउंट में भी मैंने दिया है। इनके एक का क्या नाम है? सुबह वो शायद वो एसएसबी में है, एसएसबी में है, हाँ एसएसबी में ये এসএসবি 1 স্টার। এটাই বেশি ওর গর্ব যে আমার হাজবেন্ড চাকরি করে, তোমরা চিন্তা করো কেন, ডেকে ডেকে নিয়ে যায়, আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। और मैंने जो इतना पैसा लाया तो उसका भी मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि ये पैसा मैंने बैंक से लिया, गोल्ड लोन लेके लिया, आईसीआईसी से लिया, एक फीबे का एक ऐप है उससे भी इन लोगों ने खुद मेरा करवा दिया, और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से लिया, एचडीएफसी से लिया। इन सब बैंक ने मुझे पैसा दिया था, मुझे लोन दिया था, तो मैंने ये पैसा लेके वहां पे दिया। और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि मुझे मेरा पैसा भी नहीं मिल रहा, शायद मेरा घर भी चला जाएगा, और ईएमआई वाले बैंक वाले इतने घर पे आ रहे हैं, बहुत सब प्रेशर तो देंगे। अब मैं आप लोगों ने डायरी की है इनके विरुद्ध में? जी अब हम लोग किए हैं डायरी, पहले भी हम लोग आए थे, डायरी किए थे, तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा मतलब ऐसा हो गया। गिरफ्तार किया तो आप लोग की डायरी के बल पे ही क्या होगा ना? हाँ, तो उल्टा कुछ ऐसा हो गया कि कुछ दिन के बाद मुझे ही अरेस्ट कर लिया, और मेरे साथ में एक फ्रेंड है उसको अरेस्ट कर लिया। उसमें मेरा भी नाम दिया हुआ है, और मेरे वाइफ का भी नाम दिया हुआ है, और मेरी बेटी का भी नाम दिया, और मेरे एक भाजी का भी नाम दिया है, और टोटल कम से कम उसमें 20 आदमी का नाम दिया, जिसमें मैं जेल खुद 14 दिन खट के आया हूँ। आपको जेल जाना पड़ा? मुझे ही जेल जाना पड़ा। क्यों? मैंने पैसा दिया था इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा। ऐसा ही तो होता है, जो दे आप पे आरोप लग गया? हम पे ही लग गया। और आप মোবাইল इनके साथ हैं? हाँ, हम लोग उनके साथ हैं। आप इनके साथ हैं? अच्छा, আমার 3.5 লাখ টাকা নিছে। কি বলে নিয়ে? কি বলে নিছে কিছু ইন্টারেস্ট দিব, আমার হাজবেন্ড অসুস্থ, কিছু বাড়তি দিব বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিছে। আমি তাও নিজের টাকা দিইনি, আমার মেয়ের কাছ থেকে এনে দিছি।
দিছি, এই টাকাগুলো সম্পূর্ণ হাবিস করে দিল, 1 পয়সা ইন্টারেস্টও দেয় না কিছু। বললো তোমার হাজবেন্ড বিছনায় পড়ে আছে, কিছু বাড়তি দিব, তোমার সংসারটা চলে যাবে বলে আমার কাছে টাকা নিয়েছে। इंटरेस्ट दी वो। হ্যাঁ ইন্টারেস্ট দিব বলে টাকা 3.5 लाख নিয়েছে। নিয়েছে। হ্যাঁ 3.5 লাখ किसी টাকা। को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, आप देखिए किसी को नहीं छोड़ा। चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, महिला हो पुरुष हो, सभी लोग को देखिए, कैंसर पेशेंट को नहीं छोड़ा। इनसे ये कह दिया कि आप तो मरने वाले हो, कैंसर पेशेंट हो, आप दे दो। ये बुजुर्ग महिला को नहीं छोड़ा, इनसे ले लिया कि आपको तो बुढ़ापा में सहारा मिलेगा। फोन करके धमकी देती है कि तुम लोग को उठा लेंगे, तुम लोग को अरेस्ट करवा देंगे, तुम लोग को किडनैप करवा देंगे, ऐसे करके बोलती है। हम लोग का ये दिखा रहे हैं, इनके द्वारा जो तस्वीरें दिखा रही है, इनके ये आरोपी है। और आरोपी जो है क्या नाम बताया आपने आरोपी का? ऐश्वर्या राजमंडल। ऐश्वर्या राजमंडल का ये नाम बता रहे हैं। और हालांकि उनकी हम प्रतिक्रिया लेते कि उनका क्या कहना है, लेकिन फिलहाल वो हिरासत में है, तो उनसे बात करना संभव नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन यहाँ अगर हम दर्जनों लोगों की बात माने तो आप देख रहे हैं सभी का आरोप है कि किसी न किसी तरह इन लोगों को ठगा गया है। अंकित आनंद तो उसके साथ मिला ही हुआ है, और शायद ये पूरा फैमिली है, इनके सबके अकाउंट में मैंने पैसा दिया है। किस किसके अकाउंट में दिया? मैंने अंकित आनंद के अकाउंट में पैसा दिया, सुभाषिष चंद्र के अकाउंट में पैसा दिया, ऐश्वर्या राज के ওর নাম উঠছে अकाउंट में पैसा दिया, उसके बेटे को भी मैंने पैसा दिया। আমার কাছ থেকে চেক নিয়ে आपने গেছে। चेक पे चेक হ্যাঁ চেক দিছি, ও উঠে আনিছে, আমার বই আপডেট করছি। আমার কাছে তো লিখিত আছে, না না লিখিত আছে, ये टका लिए হ্যাঁ আমার কাছে লিখিত काम আছে, पेपर लिखी दी হ্যাঁ এই যে লিখিত আছে। देखिए लिखित रूप में है, डीड है, पक्के में पैसे दिए हैं, चेक भी बाउंस हुआ है। इनका चेक बता रहे हैं, चेक है, देखिए सभी अपने कागज दिखा रहे हैं। और बावजूद इसके लोग परेशान हैं। नाम से वारंट भी इशू होता है, लेकिन पुलिस भी जो आप इधर आ जाइए। ओके मतलब चल रहा हूँ, आप कीजिए ना। हाँ देखिए ये लिखित है, उसका 5 साइन है, उसका हस्बैंड का, उसका भाई का और आशा मंडल का। सभी देखिए कोई साइन किया है। हाँ हाँ, और कुछ रिफंड भी हुआ है, और बाकी का पैसा बोला नहीं देगा, जो करना है कर लीजिए। कितना लिया था आपसे? हमसे तो लिया था बहुत, लेकिन कुल में वो काट छाट के 8 लाख हिसाब हुआ, 8 लाख में 5 लाख रिफंड हुआ है, और बाकी का पैसा बोला नहीं देंगे। अभी 3 लाख बना है, हाँ वो हाँ नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, जो करना है कर लो। ये देखिए, और ये डीड भी हमने आपको दिखाई, और सभी लोग का कहना है कि यहाँ पर तो आप लोग उनपे केस तो किए हैं? हाँ हाँ केस आपने भी किया है? হ্যাঁ हम नहीं किया। आप नहीं किया? नहीं आपके किया, साथ में আমার आए। আমার স্বামী অসুস্থ, এবার আমার কেস করার মতন শক্তি নাই। আমাকে উল্টা আরো ধমকি দিছে কি, আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফোন করছিলাম যে এরকম পয়সা দাও, বাড়ি গিয়ে পয়সা তো দিবে, থানা দিবে, কোর্ট দিবে, তোমাদের থেকে পুলিশ খুঁজতেছে, তন্ময়ের মা দিবে, যাদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছ তারা দিবে। আমাকে उल्टा এইভাবে আপনাদেরকে হুমকি। ধমকি দিচ্ছে। আমার স্বামীকে নিয়ে আমি হসপিটালে আছি। तो देखिए, चोर मचाए शोर, अगर इनका आरोप सही है तो ये कहावत सही बैठ रही है कि चोर मचाए शोर। दर्जनों लोगों से, कई दर्जन लोगों से यहाँ पर ठगी किया गया है, और जो है उल्टे उन्हें धमकाया जा रहा है, और कुछ तो जेल भी खटकर आ गए हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ, ये कुछ गिने चुने लोग हैं, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कितने लोग हो सकते हैं? टोटल कम से कम 50-60 पीपल होंगे, बट हमें अभी सिर्फ तक तो मेरे हिसाब से नहीं भी तो मैंने अभी तक 22 देखे हैं, और भी नाम सुनने को आ रहे हैं। 22 तो मेरे साथ ही, अगर कल खड़े करूं तो मैं सबको खड़ा कर सकता हूँ। শীতলাপাড়ায় 31 নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ায় 200 লোকের ভয়ের চোটে কেউ বলতে পারতেছে না, ভয় ধমকি দিচ্ছে। হ্যাঁ 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 डराती है, धमकियां देती है। करीब आप लोग हिसाब से कितना का घोटाला? मैंने हिसाब किया था उस दिन यहाँ पे थाना में, तो 2,35,00,000 22 आदमी का, 20 से 22 आदमी का। बाकी सब बताया कि 8 नहीं, उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ, अगर अभी आप चाहे तो। आपके पास प्रूफ है? मतलब हाँ, मतलब ऐसे सबका अलग साइन से वाला कितना प्रूफ होगा? है। ऐसे टोटली हम लोग जैसे 7 करोड़ का तो ये है, 7 करोड़। হ্যাঁ পেপারে দিছে, 7 करोड़ है ये। খবরেও দিছে, পেপারেও দিছে। कोई धमकाती है, আমার কাছ हम लोग থেকে से पैसा সোনা लेके নিচ্ছে। हम लोग को ही धमकाती है। সোনার দোকান থেকে সোনা নিচ্ছে, ম্যাকবুক নিচ্ছে, আমার পেনশন থেকে টাকা কাটতেছে 9,830 টাকা করে, এখনো 5টা কিস্তি। हम बोल रहे थे कि ये और उल्टा हम लोगों को, जब से मेरे पापा को इसने जेल में डाला तब से इसका साहस और भी बढ़ गया है, और अभी ये फिर फोन करके धमकाती है कि तुम लोग को उठा लेंगे, तुम्हारे मतलब मुझे उठा लेंगी, मेरे भाई को उठा लेंगी। ऐसा सिचुएशन उसने कर दिया है। हम लोग घर से निकलना तक इसके वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फोन कर करके बार बार ये सिर्फ धमकी देती है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी खबर ही है एक तरह से, क्योंकि बड़ी खबर है ये फ्रॉड की, कि किस तरह से एक गैंग है जो इनको पैसे इनका ले रहा है, इनका आरोप है ये कहना।
और चूंकि आज उसे हिरासत में भी लिया गया है, तथाकथित जो महिला है, जो आरोपी है उसे, और उसके फिलहाल यहाँ पर जांच चल रही है। एनजेपी थाना से ये सीधी तस्वीरें हैं। आपसे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, कौन कौन है? एक अंकित आनंद, एक ऐश्वर्या राज मंडल। दोनों को भी लाए हैं? दोनों को लाए हैं। दोनों को लाए जी। आप लोग की डायरी के भी नाम? जी। तो देख लीजिए, इनका कहना है कि इनकी डायरी के आधार पर, इनके जो शिकायत है उसके आधार पर यहाँ पर 2 लोगों को, आरोपियों को यहाँ पर फिलहाल लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और फिर बता दूं कि यहाँ पर करोड़ों के घोटाले की खबर आ रही है। करोड़ों के जो गबन है वो कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं, 420 कह सकते हैं, उसका एक केस फिलहाल इन लोग के आरोप को अगर हम सही माने तो ये लग रहा है। हालांकि जो आरोपी है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो पुलिस हिरासत में है। हम जानने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि पुलिस का कहना है कि हिरासत में रहते हुए उनका कोई बयान फिलहाल नहीं लिया जा सकता है। तो अगर इनकी बातें हमने तक पहुंचाई है, अगर वो भी अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो वो पक्ष भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर इन लोग की माने तो बड़ी ठगी की खबर ये आ रही है सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ से। सावधान रहेगा, कहीं आपके साथ इस तरह की घटना न घटे। और ये बता रहे हैं कि अभी वो मेडिकल में रहते हैं। পরবর্তীতে যেন এইরকম ঘটনা না ঘটাইতে পারে, এত লোকের সর্বনাশ করছে এই মহিলা। কেউ সুইসাইড অ্যাটেন্ড করছে, কেউ বাড়িতে থাকতে পারে না, অনেক অনেক যন্ত্রণায় আছে। এই মহিলার জন্য অনেকে অসুস্থ হয়ে গেছে। মানুষের বাড়িতে কাজ করতো, ওর বাড়িতে কাজের লোক চারখানা মানুষের টাকা নিয়ে ও ও 2-3টা ফ্ল্যাট কিনছে, 2 কোটি টাকা দিয়ে 1 বিঘা জমি কিনছে চাপাতা বাগানের। আমার কাছ থেকে সোনা নিচে, বাকি ল্যাপটপ নিচে, ম্যাকবুক নিচে, মোবাইল নিচে। এত ফ্রড মহিলা, এর একটা বিচার চাই। অন্ধা কানুন যেন না হয়, প্রশাসনের কাছে এটাই আবেদন। तो देखिए, प्रशासन से उन्होंने यही निवेदन किया है, ये अपील की है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए और पूरा न्याय इन्हें मिलना चाहिए। इनके साथ जो गबन किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग, जो आरोपी है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सीधी तस्वीर थी एनजेपी थाने से। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।